Hello students, welcome again. Now in this video we will solve the question number 48A practical question that is based on the based on the omissions or the error that has been made in the previous account. So read the question first. This question is also similar as the previous question, but there are some new few points are added here. So in this question say that on the 1st April 2020 the capital of the A and B were 44 lakh and 2 lakh respectively. They divided profit in the capital ratio. Profit for the year ended 31st March 2021 were 3 lakh, which have been duly distributed among the partners, but following transaction were not passed through the books. तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि 3 लाख हमारी प्रॉफिट था, इस 3 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। अब वो उनका कैपिटल रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, कैपिटल रेशियो में होगा, और दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो, ओके। और 3 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को प्रोवाइड किए हुए इन्होंने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या क्या इनको प्रोवाइड करना था, दे फॉरगेटेड दैट दे हैव टू अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, commission due to B rupees 20,000 on the special transaction. A is to be paid a salary rupees 50,000. You are required to pass the journal entry on the 10th April 2021, which will not affect the profit and loss account of the firm. At the same time will rectify the errors. तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहाँ पे क्या था कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पोर्शन जो था वहाँ पे ऐड नहीं था, और इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पे सैलरी का था कि सैलरी वहाँ पे नहीं दिया गया था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया गया और ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया और सैलरी और कमीशन, यानी कि 3-4 पॉइंट हैं। तो लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, इसका सोल्यूशन देखिए बच्चों इस तरीके से। तो सोल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सेम वे वी विल प्रिपेयर द एडजस्टमेंट टेबल फॉर द करेक्शन और फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर द व्हाट शुड ही गेट एज पर द एग्रीमेंट। तो एज पर एग्रीमेंट ही विल गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, commission and interest on drawing they will be charged. So first of all we will calculate the interest on capital at the rate 12% per annum on their capital 4 lakh and 2 lakh respectively. So interest will become here 48,000 and 24,000, and then we will provide salary to A, that will also be credited in their capital account, in their account. So salary is rupee 50,000, only salary given to the A, and B is to be provided commission rupee 20,000, that should be also be credited. So in this way we will calculate the 3 item are the credit. So first of all we will calculate the credit item here, credit 98,000, and if we added the both two items we will get 44,000 as a credit portion for the B. So as you know that the interest on drawing that should be debited from the partner's capital account. So because it reduce the balances of the capital, so it will be debited. So if we debited the interest on capital, interest on drawing are given in the question 12,000 and 12,000, okay, 12,000 10,000 सॉरी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो है 10,000 है, तो ये 10,000 बच्चों, तो आप इसको 10,000 कंसीडर करना। तो इंटरेस्ट ऑन जो ये करेक्शन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 10,000, ओके। तो इफ़ वी डिडक्ट from the credit balance the debit balance, if we
if we deduct the debit balance from the credit balance, we will get here, if we minus the 12,000 from the 98,000, we will get 86,000 here, and if we deduct 10,000 from the 44,000, we will get 34,000. So at last we will find here that there is a credit balance of 86,000 for A and 34,000 for B. Okay, so this profit is this credit balance 86,000 and 34,000 should be given to A and B in their respective capital account, but it is omitted or it is forgotten while preparing the accounts. So सपोज करो कि अगर ये प्रॉफिट का अगर ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उस समय प्रॉफिट का इन्होंने क्या किया होगा, 86,000 और 34,000 को जो कि 1,20,000 हो उसको रॉन्गली वहाँ पे उन्होंने 2:1 का रेशियो में इन्होंने, क्योंकि इनकी कैपिटल रेशियो 2:1 का आ रहा है, तो 2:1 में उन्होंने अपने अकाउंट में कितने से क्रेडिट कर लिया होगा, 86,000 से और 40,000 से। तो इसलिए इस टाइम जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बना रहे हैं तो यहाँ पे उनके अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे सेम अमाउंट से 80,000 से और 40,000 से। नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम द 86,000 एंड 80,000। तो 86,000 तो इनका क्रेडिट बैलेंस है का, और डेबिट बैलेंस यहाँ पे कितना करना है हमको, 80,000। तो अभी भी लास्टली यहाँ पे 6,000 का इनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो 6,000 को यहाँ पे हम लोग क्रेडिट बैलेंस में कर देंगे। क्रेडिट बैलेंस इनका बच रहा है ए का, और बी का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आया 34,000, बट यहाँ पे इनको डेबिट कितने से किया जा रहा है, 40,000 से। तो अभी भी इनका बैलेंस देखें तो इनका डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो 6,000 का यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है, यहाँ का 6,000 यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो दैट बीज अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड एज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो जनरल एंट्री हमारी रेक्टिफिकेशन की ये पास हो जाएगी। तो बीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड with ₹6,000 and age capital account will be credited by ₹6,000. So this entry is our rectification journal entry. This entry is also called the adjustment journal entry, that make the correction if that is occurred in the previous year. Okay, so in this way we will solve the question. Okay, it is there are 4 points are missing in the previous year. We will rectify, or through preparing the adjustment table, we will first of all we will credit all the items that should be given to the partners in their respective capital account, whether it may be the capital interest on capital, salary, commission or drawing. Drawing should be debited because it reduces the balances of the capital, so it will be reduce the capital balance, so it will be minus here. So we will lastly we will find the ultimate balance, that is the credit balance came here. So now this 1,20,000 will be adjusted because it has been done in the previously by crediting in their respective capital account. तो यहाँ पे 80,000 और 40,000 लास्ट अकाउंट में जब पिछले साल उन्होंने 80,000 को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। तो अभी हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब इस क्रेडिट और डेबिट से कंपेयर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 6,000 का क्रेडिट पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनका डेबिट बैलेंस है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस सिर्फ 34,000 का, तो यहाँ पे 6,000 का इनका डेबिट बैलेंस बच रहा है क्योंकि डेबिट बैलेंस का यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्री क्या पास कर देंगे, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से इसकी हम लोग रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ओके स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस स्टडी।